The next topic of set theory is complement of a set. Let U be the universal set and A be the set such that A subset of U. A is the subset of U. Then the complement of A with respect to U is denoted by A dash or the A C or U minus A, and is defined that the set of all those elements of U which are not in A. देखिए कॉम्प्लीमेंट जस्ट क्या है कि जो सेट में एलिमेंट ए में है वो यूनियन में से माइनस कर देने हैं. जो बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, ए डैश. सपोज ये यूनियन है, टोटल यूनियन, ये ए सेट है. अब यूनियन में से ए माइनस करेंगे तो ये पार्ट बचेगा. यानी सपोज ये पूरे में 1 2 3 4 5 बहुत सारे एलिमेंट हैं. 1 2 3 4 5. दिस इज द यूनियन. This is a union set. Now the A set is suppose 1 3 5. It means complement of this is 1 3 5. Subtract कर देंगे only 2 4. The complement of A is 2 4. यूनियन में से A के एलिमेंट को माइनस कर देंगे. देखिए A dash equal to X belongs to union and X does not belongs to A. यूनियन को बिलोंग करेगा लेकिन इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा. दैट इज द कॉम्प्लीमेंट. एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए डैश. इट मीन्स एक्स इज नॉट ए. एक्स बिलोंग्स टू ए डैश. इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. या तो कोई एलिमेंट यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा. इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा या फिर इसमें होगा. जस्ट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इक्वल टू यू माइनस ए. यूनियन में से ए के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. The next, De Morgan law. What is the De Morgan's law? The complement of a union of two sets. The complement of union of two sets. Here is A union B and dash is the for the complement. Is the same as the intersection of their complements. Is equal to the intersection of their complements. Second law is the complement of intersection of two sets is the same as the union of their complements. Just complement of intersection of these two sets equal to the union of complements of these two. Two laws of De Morgan's. Okay. Now properties of complement sets. The complement law is A union A dash equal to union. Total if you में आएंगे A और A dash total मिलके क्या बनेगा, यूनियन. That is A union A dash equal to universal set. And intersection of these two sets is phi. A intersection A dash equal to phi. क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. डी मॉर्गन्स लॉ यही है. थर्ड वन इज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. अगर डबल उसको रिपीट फिर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सेट इटसेल्फ खुद ही सेट आ जाएगा अगर कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो. नेक्स्ट लॉ इज फोर्थ लॉ. फोर्थ लॉ इज लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इक्वल टू यूनिवर्सल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज नल सेट फाई. कॉम्प्लीमेंट अगर यूनिवर्सल का निकालेंगे तो एम्प्टी हो जाएगा और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट universal. Okay. Now see the exercise 1.5. Question number 1. Let U equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the elements of universal set. And A equal to 1, 2, 3, 4. B equal to 2, 4, 6, 8. And C equal to 3, 4, 5, 6. Then find A dash means complement of A, complement of B, complement of A union C, complement of A union B, complement of complement, self complement, and sixth one is B minus C complement. Okay. Universal is elements 1 to 9. Okay. Now the complement of A. So just subtract the elements of A. 1 2 3 4. The rest elements are 5 6 7 8 9. Simple. And the complements of B, just subtract the complements of elements of B.
देखिए बी के एलिमेंट्स कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, 2 4 6 8, 2 4 6 8. The rest are 1 3 5 7 9. These are the elements of complement. Just subtract from it. And A union C dash. First we have to find the A union. A union C means all the elements of A and C. 1 2 3 4 5 6. 4 5 6. This is the union, and complement of this is 1 2 3 4 5 6. Subtract from you will get 7 8 and 9. इन सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 7 8 9. Next one is A union V dash. The first A union B means all the elements of A and B. 3 4 6 8. This is the union, all the elements of A and B. Now the complement of this, 1 2 3 4 6 8. The rest are 5 9 5 7 9. 5 7 9. Next one is complement of A is set itself. Set itself. It means 1 2 3 4. According to the property, complement of complement is set itself. And B minus C. Complement B minus C means B minus C. The which 4 subtract 4 6. B minus C is 2 8. B में से अगर C के एलिमेंट हटाएंगे तो कौन से एलिमेंट हटेंगे, 4 and 6. बचेगा क्या, 2 8. B minus C is 2 8. Now the complement of 2 8. All the element except 2 and 8. 1 3 4 5 6 7 and 9. Only except 2 and 8. Okay. This is the complement of the following sets. Now question number 2. U equal to, in question number 2, the elements are A, B, C, D, E, F, G, H. Find the complements of the following sets A, B, C, D. Just subtract from U. The universal set is A, B, C, D, E, F, G, H. A equal to A, B, C. So now A dash, complement of A is, except A, B, C, D, E, F, G, H. This is the complement. Similarly, the set B equal to elements D, E, F, G. Now B dash, subtract from U. U means U minus B. Just D, E, F, G. Remove D, E, F, G. So we will get A, B, C and H. Clear? And the C, complement of C, A, C, E, G. A, C, E, G. You will get B, D, F and H. And D is F, G, H, A. F, G, H and A. You will get B, C, D and E. This is the complement of following sets. Next one. Question number 3. Taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complement of the following. 11 questions in this part. Suppose x is such that x is an even natural number. x is a natural number. अब जस्ट इसमें से इन सभी को सब्ट्रैक्ट करते जाना है, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, x इज सच दैट इवन नेचुरल नंबर. अगर नेचुरल नंबर्स में से इवन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इज एन ऑड नेचुरल नंबर. भाई जो इवन नहीं है तो वो क्या होंगे, ऑड होंगे.
अब x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका हो जाएगा क्या, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, ऑड का कॉम्प्लीमेंट इवन एंड इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड. एंड द थर्ड वन इज x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, सिंपल x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़कर सारे नंबर कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे. नेक्स्ट, x इज ए प्राइम नंबर. तो इसमें क्या हो जाएगा, जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है. x इज ए कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल टू 1, क्योंकि 1 ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, तो इसलिए सेट में क्या आ जाएगा, एक बचेगा x इक्वल टू 1 एंड अदर ऑल कंपोजिट नंबर्स. प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है और x इक्वल टू 1 है. द नेक्स्ट वन, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5. तो जस्ट अपोजिट, x इज ए नेचुरल नंबर को तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि यूनिवर्सल में क्या है, नेचुरल नंबर है. x is a set of natural numbers which are not divisible by, numbers which are not divisible by 3 and 5, by 3 और 5, मतलब 3 और 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए. सेम ईयर, x is a perfect square. Just x is such that x belongs to a natural number and x is not a perfect square. Okay. Same, x is a perfect cube. Same, x is such that x belongs to a natural number and x is not a perfect cube. एक परफेक्ट क्यूब को छोड़ के बाकी सारा आएगा कॉम्प्लीमेंट में. ओके. नेक्स्ट वन इज x is such that x plus 5 equal to 8. It means x is such that x equal to 3. अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x is such that x belongs to a natural number and x is not equal to 3. भाई x इक्वल टू 3 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नेचुरल नंबर्स तो सारे हैं, तो एक्सेप्ट 3 ऑल आर नंबर्स आर कॉम्प्लीमेंट. सेम, x is such that 2x plus 5 equal to 9. It means 2x equal to 4, x equal to 2. Now the complement of this, x is such that x belongs to a natural number and x is not equal to 2. Okay. Next one is x is greater than equal than 7. x greater, it means all क्या होंगे, x belongs to a natural number and x is less than 7. क्योंकि x के बराबर और x से बड़े सारे एक सेट में दिए हुए हैं, तो जो x से छोटे ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे. द नेक्स्ट वन इज x is a natural number and 2x plus 1 greater than 10. It means x is greater than 9 by 2. It means क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट इसका, x is such that x belongs to a natural number and x is less than and equal than 9 by 2. This is the complement set. Okay. Now the question number 4. U equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A equal to 2, 4, 6, 8 and B equal to 2, 3, 5, 7. Verify that A union B, complement of A union B equal to complements of intersection of complements and same. This is a De Morgan's law. U equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. A and B. A union B dash इक्वल टू, यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 2, 3, 4,
5 6 7 8 और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 एंड 9. ऑल द एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7 8 जाएंगे, क्या बचेगा 1 9. अब सेकेंड पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट RHS कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 1 3 5 7 9. कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी में क्या आएगा 1 2 3 4 6 8 9. अब इन दोनों में इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, कॉमन क्या है दोनों में 1 9. ओके, सिर्फ कॉमन क्या है 1 एंड 9. प्रूव हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ है. फॉर द सेकेंड वन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है 2 और कुछ है नहीं है, ओनली 2. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2, 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 3 4 5 6 7 8 9. अब यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी. ए का कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या होगा, इसको हटा देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन करेंगे. पहले ए का कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 हटा दीजिए, तो क्या आएगा 1 3 5 7 9. यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी के लिए 2 3 5 7 हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 4 6, राइट हियर 1 4 6 8 9. 2 3 5 7 इसमें से निकाल दिए, 2 3 5 7, तो विल गेट 1 4 6 8 1 4 6 8 9. Now the union of these two numbers, union means all the element 1 union 1 3 5 1 3 4 5 6 7 8 9. इन दोनों का यूनियन यही आ गया, और ये यूनियन किसके बराबर है, अब इसका क्या करना है, इसका यूनियन इसके बराबर है कि नहीं है 1 3 4 5, यही प्रूव करना था. ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू द यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ appropriate Venn diagram for each of the following. A union B dash, A intersection of A dash and B dash. A intersection B complement and this. Venn diagram of A union. Suppose this is a universal set. This is universal. A union B, suppose A and B, these are the two sets. Now the complement of A union B, यानी इस पार्ट को छोड़ के बाकी सारा पार्ट, this is the complement of A union B. ओके, ये क्या हो गया A B एंड ये U है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे A यूनियन, इसी को A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. सेम इंटरसेक्शन सेकेंड में भी क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. सपोज दिस इज द ए, द कॉम्प्लीमेंट इज द होल पोर्शन. ओके, नाउ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी का भी होल पोर्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ऑल दस, एंड इंटरसेक्शन दिस इज द पार्ट. टोटल ये कॉम्प्लीमेंट ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश एंड बी डैश. ये ए बी ए डैश, दोनों में इंटरसेक्शन मीन्स दोनों का कॉमन पार्ट. सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है. देखिए ये दो सेट हैं और इन दोनों सेट का ये कॉम्प्लीमेंट बीच में इंटरसेक्शन पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है ए इंटरसेक्शन बी. तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ आएगा, ये पूरा पार्ट आएगा. कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनियन में से इसको छोड़ देंगे. Which part is only? This is the
this part is complement of A. And the same complement, union of complements. ये कॉम्प्लीमेंट जाएगा इसका और इसका जो यूनियन आएगा वो यहां आ जाएगा सेम. According to the De Morgan's law, these two numbers are equal and these are equal. The same figure. Okay. Next question. Question number 6 is U is the set of all triangles and A is the set of all triangle at least one angle different from 60 degree. यानी ऐसे ट्राइंगल हैं जिसका कि एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है. अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी डिफरेंट एंगल सारे निकाल देंगे तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, U माइनस ए. कीजिए सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, क्योंकि सारे क्या बचेंगे, सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स. ओके, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल. Next question. Fill in the blanks to make each of the following a true statement. Okay, A union A dash, this then and so. A union A dash, this is equal to the whole set, universal set. And phi dash intersection A, phi, the complement of phi is union. Union intersection A equal to A. यूनियन में ए, दोनों में जो छोटा होगा वही कॉमन निकलेगा. थर्ड वन इज यू डैश इंटरसेक्शन ए. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू डैश इज नल सेट. इंटरसेक्शन ए, इट मीन्स नल सेट. एंड ए इंटरसेक्शन ए डैश नल, कुछ भी नहीं होगा. देखिए ए और ए डैश में क्या डिफरेंस है, ये ए है और ये ए डैश है. जब हम उनका यूनियन करेंगे, जोड़ेंगे पूरा, तो यूनियन बनेगा और जब कॉमन निकालेंगे तो नल निकलेगा. ठीक है. द एक्सरसाइज इज फिनिश्ड नाउ.